Namaskar, I'm Shailaja Gaur, Assistant Teacher, GMPS Kandoli, Raipur Block, Dehradun. Today, we are going to enjoy a funny story. Let's begin. This story is from NCERT textbook Marigold, Class 4, Subject English, Unit 9, and the title of the story is Pinocchio. Let's begin. The points we are going to discuss are: read the text, comprehend the meaning, new words. The title of the story is Pinocchio. This is a very funny story written 130 years back. Let's start reading. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." The old man was puzzled by the voice. He said, "This is a strange piece of wood. What shall I do with it? I think I'll make it into a puppet." He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, "He must have a name. I will call him Pinocchio." As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. Before the mouth was made, it began to laugh. "Stop laughing," the old man said. It did stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue and its nose grew long. No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. And then Pinocchio's nose grew longer. When its legs and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. Now the carpenter decided to send Pinocchio to school. But there Pinocchio did nothing but look for fun. He often ran away from school. "Why don't you go to school?" asked the carpenter. Pinocchio told him a lie, and his nose started growing longer and longer. Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Finally, Pinocchio said, "I'm glad to be a real boy. I will never lie again." Adapted from the story of Pinocchio. ये पिनोकियो नाम की कहानी से ली गई है, ये शॉर्ट की गई है बच्चों के लिए. So let's read it again. The name is Pinocchio. ये जो कहानी है ये पिनोकियो नाम के एक पपेट के बारे में है. ये फनी स्टोरी 130 साल पहले लिखी गई थी और आज भी इस स्टोरी को बच्चे मजे लेकर पढ़ते हैं. इस स्टोरी पर एक मूवी भी बनी है. इस कहानी में एक कारपेंटर वुड पीस से एक पपेट बनाता है. ये वुड पीस बड़ा फनी सा होता है और उस वुड पीस से जो पपेट बनता है वो पपेट भी बहुत फनी होता है. वो बिल्कुल रियल बॉय की तरह होता है. बस उसमें एक अंतर होता है कि जब भी वो फनी एक्टिविटीज करता था या
लाई यानी झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। तो कैसे ये पपेट बनाया गया, कैसे ये शैतानी करता था और कैसे ये इसने अपने आप को चेंज किया। सो लेट्स सी द स्टोरी पिनोकियो। Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. एक समय की बात है, एक बूढ़े कारपेंटर ने एक अजीब से लकड़ी के टुकड़े को लिया। As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop." जैसे ही उसने अपना प्लेन, you can see this instrument जो कारपेंटर्स यूज करते हैं वुडन वर्क के लिए, जिसे हिंदी में रंदा भी कहा जाता है। जैसे ही कारपेंटर ने अपना प्लेन उस पर चलाना शुरू किया, he heard a little laughing voice. laughing हंसी की आवाज, laughing voice। तो उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी और उसने बोला, स्टॉप, रुको। यू आर टिकलिंग मी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। बूढ़ा व्यक्ति उस आवाज से पजल, कंफ्यूज, भ्रमित हो गया, यानी उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कहां से आ रही है। He said, "This is a strange piece of wood." उसने कहा, ये लकड़ी का अजीब सा टुकड़ा है। What shall I do with it? मैं इससे क्या करूं? I think I'll make it into a puppet. मैं सोचता हूं इससे मैं एक puppet बनाता हूं। He set to work. वह काम में लग गए। And as the puppet boy took shape, the old man said, "He must have a name." और जब puppet boy आकार लेने लगा, शेप लेने लगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसका एक नाम होना चाहिए। I will call him Pinocchio. मैं इसे पिनोकियो बुलाऊंगा। As soon as he finished making the eyes, the carpenter was amazed to see them move. जैसे ही कारपेंटर ने आंखें पूरी की, उनको आश्चर्य हुआ कि वो आंखें हिल रही हैं। Before the mouth was made, it began to laugh. जैसे ही मुंह पूरा हुआ, ये भी हंसने लगा। Stop laughing, the old man said. ओल्ड मैन ने कहा, हंसो मत, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा हो रहा था कि आंखें बनाते ही वो आंखें मूव करने लगी। जैसे ही उन्होंने उस पपेट का मुंह बनाया तो वो एकदम से हंसने लगा। It did stop, but as soon as his back was turned, it put out its tongue. ये हंसी की आवाज तो रुक गई, पर as soon as his back was turned, जैसे ही उनकी बैक यानी पीठ उन्होंने पलटी, वो पीछे मुड़े, it put out its tongue. पपेट ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जैसे बच्चे चिढ़ाने के लिए करते हैं। You can see in this picture. It put out its tongue. इसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। And its nose grew long. और जैसे ही उसने ये काम किया, शैतानी का काम किया, its nose grew long. उसकी नाक लंबी हो गई। No sooner were its hands ready than it snatched off the carpenter's wig and put it on its own head. जैसे ही इस पपेट के हाथ तैयार हुए,
उसने कारपेंटर का विग खींच लिया और पुट इट ऑन इट्स ओन हेड और अपने सिर पर रख लिया। स्नैच, छीन लेना, खींच लेना, स्नैच्ड। विग, जो नकली बाल लगाए जाते हैं सिर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड विग। पिनोकियो ने उसकी कारपेंटर का विग छीन लिया और अपने सिर पर रख लिया। एंड देन पिनोकियो's nose grew longer, और तब पिनोकियो की नाक और लंबी हो गई। When its legs and feet were made, they were too stiff to use. So the carpenter showed Pinocchio how to use them. जब उसके पैर तैयार हो गए, वे बहुत कड़े या कठोर थे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि अगर वो फ्लेक्सिबल हो तो हम उनसे चल सकते हैं आराम से, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं हो, हमारे पैर अगर कठोर हो, सीधे रहे, तो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके पैर बहुत स्टिफ थे पपेट के। सो कारपेंटर शोड, इसलिए कारपेंटर ने पिनोकियो को दिखाया, दिखाया हाउ टू यूज देम, कि अपने पैरों को कैसे इस्तेमाल करें। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल। अब कारपेंटर ने निर्णय लिया, निश्चित किया पिनोकियो को स्कूल भेजने का। बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन। लेकिन वहां पिनोकियो ने कुछ नहीं किया, बस मजे किए। He often ran away from school. वह अधिकतर स्कूल से भाग जाता था। Why don't you go to school? asked the carpenter. तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? कारपेंटर ने पूछा। Pinocchio told him a lie. पिनोकियो ने उसे एक झूठ बोला। And his nose started growing longer and longer. और उसकी नाक बढ़ती गई, लंबी होती गई। As you can see here, यहां पर आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि कारपेंटर की विग को पिनोकियो कैसे स्नैच कर रहा है। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Each time, हर बार, जब भी वह किसी के साथ रूड बिहेव करता था या कोई झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी होती जाती थी। Finally, Pinocchio said, I'm glad to be a real boy. I'll never lie again. Finally, आखिर में पिनोकियो ने बोला, I'm glad, मुझे खुशी है, to be a real boy, एक असली लड़का बनने की। मैं एक असली लड़का हूं, इस बात की मुझे खुशी है। I'll never lie again. मैं never, कभी भी lie, झूठ नहीं बोलूंगा। So this is a story from Story of Pinocchio. तो थी ना ये एक मजेदार स्टोरी। Now let's read the new words. The new words in this story are: first, carpenter, carpenter, C-A-R-P-E-N-T-E-R, carpenter, बढ़ई. Second word is queer, Q-U-E-E-R, queer, अजीब. Strange, plain, P-L-A-N-E, plain. ये कारपेंटर का इंस्ट्रूमेंट, जिसे रंदा भी कहते हैं, प्लेन. Puzzled, P-U-Z-Z-L-E-D,
puzzled. Puzzled, भ्रमित, confused. Next word is puppet. P-U-P-P-E-T. Puppet, कठपुतली. Next, took shape. Took shape means आकार लेना. जैसा कि आपने स्टोरी में देखा कि कारपेंटर ने उस वुडन पीस को एक शेप दी. Amazed, आश्चर्य होना, अचरज होना. Next word is finished. समाप्त करना, खत्म करना, किसी टास्क को कंप्लीट करना. Stiff, कड़ा, hard. Last word is decided. Decided, निर्णय लिया. So these new words from this story are carpenter, queer, plain, puzzled, puppet, took shape, amazed, finished, stiff, decided. Carpenter, बढ़ई. Queer, अजीब. प्लेन, रंदा या कारपेंटर का इंस्ट्रूमेंट. पजल्ड, भ्रमित, कंफ्यूज्ड. पपेट, कठपुतली. टुक शेप, आकार देना. अमेज्ड, आश्चर्य करना. फिनिश्ड, समाप्त करना. स्टिफ, कठोर. डिसाइडेड, निर्णय लेना. So this was the story of Pinocchio. You can see in the picture an old carpenter and his plane, right? There is a piece that was queer. ये एक टुकड़ा था जो बड़ा अजीब सा था जिसके साथ he started working. उसने काम करना शुरू किया और जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा कि उन्होंने इस अजीब से टुकड़े से एक पपेट तैयार किया जिसको उन्होंने नाम दिया पिनोकियो. और फिर हमने स्टोरी में पढ़ा कि जब उन्होंने उस पर प्लेन से वर्क करना स्टार्ट किया तो वो पीस से लाफिंग वॉइस आई और उसे बोली कि स्टॉप, रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है. ये सुनकर ओल्ड मैन पजल्ड हो गया. फिर उन्होंने कहा ये पीस तो बड़ा अजीब सा है, मैं इसके साथ क्या करूं. उन्होंने सोचा कि मैं इसे एक पपेट बना लेता हूं और वो काम करना शुरू हो गए. उन्होंने उस क्वीर पीस ऑफ वुड से एक पपेट तैयार कर लिया. फिर उन्होंने कहा इसको नाम भी दे देते हैं और उन्होंने उसको नाम दिया पिनोकियो. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हाउ कारपेंटर इज मेकिंग दैट पपेट. उसके बाद जैसे ही उन्होंने उसकी आंख पूरी की वो आंख घूमने लगी. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की आंख हम लोगों की आंखें घूमती है, उसकी आंखें भी हिलने डुलने लगी. इससे पहले कि माउथ पूरा होता ये हंसने भी लगा. और फिर कारपेंटर ने बोला स्टॉप लाफिंग, हंसो मत. तो इसने कहना तो माना, पर आपने देखा कि जैसे ही कारपेंटर ने अपनी बैक को टर्न किया, अपनी पीठ को पलटा, पीछे मुड़े, इसने शैतान बच्चे की तरह अपनी जीभ निकाल ली जैसा बच्चे अक्सर करते हैं. और जल्दी ही उसने अपने हाथों से कारपेंटर की विग निकाल ली और अपने सिर पर रख ली. और जैसे ही उसने ये किया पिनोकियो की नोज लंबी होती गई. जब उसके पैर तैयार हो गए तो वो बहुत कठोर थे, तो कारपेंटर ने उसे दिखाया कि कैसे उनका इस्तेमाल करना है. इसके बाद क्योंकि वो बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा बच्चे की तरह सब कुछ हरकतें कर रहा था, तो कारपेंटर को लगा कि इसको स्कूल भेजना चाहिए. लेकिन उसको वहां पर कुछ नहीं करना था, वो सिर्फ मजे करता था और अधिकतर वो स्कूल से भाग जाता था. तो कई बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन वो गलत होता है. तो फिर उन्होंने पूछा उससे कि तुम ऐसा क्यों करते हो.
स्कूल क्यों नहीं जाते? तो पिनोकियो ने एक झूठ बोला और जैसे ही उसने झूठ बोला उसकी नाक फिर लंबी हो गई, क्योंकि पहले भी हमने देखा जब उसने शैतानी की तो उसकी नाक लंबी हो गई थी। और हर बार जब वो किसी से बुरा व्यवहार, रफ, अच्छा व्यवहार नहीं करता था या झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। आखिर में पिनोकियो को समझ में आया, उसे लगा कि मैं तो एक बिल्कुल असली लड़के जैसा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे खुशी है कि मैं असली लड़के जैसा हूं। तो उसके बाद उसने ऐसा कभी नहीं किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी बच्चे इस कहानी को बहुत मजे लेकर पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि कैसे हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो टुडेज होम असाइनमेंट, ये एक बहुत मजेदार काम है। राइट अ फनी स्टोरी and tell the story to your friends and family members. For that, you can use English, Hindi, or any local language. Let your friends and family members enjoy your story. आपको एक मजेदार कहानी लिखनी है, जैसे आपने मजेदार कहानी अभी पढ़ी या सुनी। ऐसी ही एक मजेदार कहानी आपको अपने मन से बनाकर लिखनी है और फिर उस कहानी को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स को भी सुनाना है। इस कहानी को बनाने के लिए आप इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस का, जो भी आपको भाषा आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिला जुला कर आप इस कहानी को बना सकते हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप वहां की कोई लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। इस तरह से आप इस कहानी को मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके आप इस कहानी को बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को सुनाकर उन्हें भी मजे का एहसास कराइए। सो दिस इज योर होम असाइनमेंट। सो दिस वाज आवर स्टोरी पिनोकियो। और इस सेशन में हमने इस स्टोरी को एंजॉय किया। We learned so many things and we learned about our home assignment. Hope you like this session. Thanks.